Jai Hind Bachcho. Welcome to the English class with Garima Batra Chinwada. And today we are going to discuss lesson number 7 from your textbook Flamingo. And the name of the lesson is The Interview. The Interview के राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. तो आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं. ये लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की बुक अ पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज का एक अंश है. So, let's begin the lesson. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. 30 साल पहले अपने आविष्कार के बाद से साक्षात्कार या इंटरव्यू पत्रकारिता का एक सामान्य स्थान बन गया है. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. आज लगभग हर कोई जो साक्षर है या पढ़ा लिखा है उसने अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा, जबकि दूसरा दृष्टिकोण से कई हजार हस्तियों का साक्षात्कार वर्षों में किया जा चुका है. उनमें से कुछ ने बार बार साक्षात्कार दिया है. So, it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. तो ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि साक्षात्कार की राय इसके कार्यों, विधियों और गुणों के बारे में काफी भिन्न होती है. Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth and in its practice an art. कुछ लोग इसके उच्चतम रूप में, सत्य के स्रोत के रूप में और इसके अभ्यास में एक कला के रूप में इसके लिए बहुत ही असाधारण दावे कर सकते हैं. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. अन्य आमतौर पर मशहूर हस्तियां जो खुद को इसके शिकार के रूप में देखते हैं, साक्षात्कार को अपने जीवन में एक अनुचित घुसपैठ के रूप में देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि यह किसी तरह उन्हें कम कर देता है. जैसे कि कुछ आदिम संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि कोई किसी का फोटोग्राफिक चित्र लेता है तो कोई उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. एलिस इन वंडरलैंड के निर्माता लुइस कैरोल के बारे में कहा जाता है कि V.S. नायपॉल को लगता है कि साक्षात्कार से कुछ लोग घायल हो जाते हैं और खुद का एक हिस्सा खो देते हैं और उन्होंने साक्षात्कार के लिए कभी सहमति नहीं दी. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. यह उनके सिंहावलोकन का आतंक था जिसने उन्हें इस प्रकार अपने परिचितों, साक्षात्कारकर्ताओं और उनके ऑटोग्राफ के लिए लगातार मांगने वालों या याचिकाकर्ताओं से दूर कर दिया और बाद में वे
ऐसे सभी लोगों को बहुत संतुष्टि और मनोरंजन के साथ चुप कराने में अपनी सफलता की कहानियों को बताएंगे। Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. रडियार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ताओं के प्रति और भी अधिक निंदनीय रवैया अपनाया या दोषपूर्ण भावना व्यक्त की। उनकी पत्नी कैरोलिन 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में लिखती हैं कि उनका दिन बोस्टन के दो पत्रकारों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment." वो अपने पति को सूचित करती हुई पत्रकारों को कहती हैं, मैं साक्षात्कार देने से क्यों डरती हूँ? क्योंकि यह अनैतिक है, यह एक अपराध है, मेरे ऊपर किए गए एक हमले के समान अपराध है, एक आक्रमण की तरह है और ये एक सजा देने योग्य कार्य है। It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. यह एक कायरतापूर्ण कृत्य और घटिया कार्य है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं करेगा और साक्षात्कार को छोड़ देगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. फिर भी किपलिंग ने खुद इस प्रकार का आक्रमण मार्क ट्वेन पर कुछ वर्ष पहले किया था। H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. वेल्स ने 1894 में एक साक्षात्कार के दौरान इसे एक अग्नि परीक्षा की तरह माना, लेकिन यह एक अच्छा और बार-बार साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति था और 40 वर्ष बाद उसने खुद को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Saul Bellow, जिन्होंने कई मौकों पर साक्षात्कार के लिए सहमति दी है, इसके बावजूद उन्होंने एक बार साक्षात्कार को उनकी सांस की नली पर अंगूठे की छाप के समान वर्णन किया था। Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews, Dennis Bryan has written. और फिर भी साक्षात्कार के इतने सारे दोषों के बावजूद भी यह संचार का उपयोगी माध्यम है। इन दिनों दूसरे अन्य समय की तुलना में हमारे समय के सबसे अधिक प्रभाव साक्षात्कार के द्वारा ही मालूम होते हैं, डेनिस ब्रायन ने लिखा है। Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. लगभग हर पल की हर चीज एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछने के माध्यम से हम तक पहुंचती है और इसी वजह से
साक्षात्कारकर्ता अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव की स्थिति रखता है। Now part 2. I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco. मैं एक प्रोफेसर हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। The following is an extract from an interview of Umberto Eco. ये जो निम्नलिखित उदाहरण है, ये Umberto Eco के एक साक्षात्कार से लिया गया है। The interviewer is Mukund Padmanabhan from the Hindu. साक्षात्कार लेने वाला मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू से है। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Umberto Eco बोलोग्ना विश्वविद्यालय इटली के प्रोफेसर हैं जिन्होंने संकेत विज्ञान में साहित्यिक व्याख्या, मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र आदि में काल्पनिक लेखन में आने से पहले दुर्जेय ख्याति प्राप्त कर ली थी। Literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide-ranging. साहित्यिक कथा साहित्य, एकेडमिक ग्रंथ, निबंध, बच्चों की किताबें, समाचार पत्र लेख आदि उनकी अत्यधिक बड़े और विस्तृत रूप में लिखी जा चुकी थी। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. और 1980 में उन्होंने The Name of the Rose के प्रकाशन के बाद शानदार बौद्धिक सफलता को प्राप्त किया और इसकी लगभग 10 लाख मिलियन कॉपीज बिकी थी। Mukund. The English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he, Eco, does. मुकुंद अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मैं नहीं समझ सकता कि एक व्यक्ति इको इतना कुछ कैसे कर सकता है। Umberto Eco. Maybe I give the impression of doing many things, but in the end, I'm convinced I'm always doing the same thing. Umberto Eco कहते हैं, शायद मैंने कई चीजों को करने का प्रभाव छोड़ा है, लेकिन आखिर में मैं ये मानता हूँ कि मैं हमेशा एक ही प्रकार का काम करता आ रहा हूँ। मुकुंद, which is? मुकुंद ने पूछा, कौन है? Umberto Eco. Ah, now that is more difficult to explain. अब यह वर्णन करने में बहुत कठिन है. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और उन्हें मैं अपने शैक्षिक कामों और उपन्यास के द्वारा पूरी करता हूँ. Even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical, philosophical interest. और बच्चों के बारे में मेरी किताबें अहिंसा और शांति के बारे में हैं. आप देखते हैं वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह है. And then I have a secret. और फिर मेरे पास एक रहस्य है. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. क्या आप जानते हैं कि क्या होगा यदि आप ब्रह्मांड से रिक्त स्थानों को हटा दें, सभी परमाणुओं में रिक्त स्थान को समाप्त कर दें? The universe will become
as big as my fist, तब ये ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी जितना बड़ा रह जाएगा. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक खाली स्थान हैं. I call them interstices. मैं उन्हें अंतराल कहता हूँ. Say, you are coming over to my place. सोचो, आप मेरे घर आ रहे हो. You are in an elevator and while you are coming up, I'm waiting for you. आप एक एलिवेटर में हो और जब आप ऊपर की ओर आ रहे हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. This is an interstice, an empty space. यह एक अंतराल है, एक खाली स्थान है. I work in empty spaces. मैं खाली स्थानों में काम करता हूँ. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. Laughs. आपका एलिवेटर पर पहले तल से तीसरे तल तक आने का इंतजार करते हुए मैं एक लेख लिख चुका होता हूँ. हंसता है. मुकुंद. Not everyone can do that, of course. निसंदेह और कोई इस प्रकार नहीं कर सकता है. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. आपका सही लेखन, आपका विद्वत्तापूर्ण काम स्वयं में कुछ मनोरंजक और व्यक्तिगत गुण रखते हैं. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. यह एक नियमित शैक्षणिक तरीके से विदाई सा लगता है, जो कि समान रूप से हमेशा अव्यक्तिगत और प्रायः रूखी और बोर कर देने वाली होती है. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? क्या आप इसे जानबूझकर अनौपचारिक तरीके से अपनाया हुए हैं या ये ऐसी कुछ है जो प्राकृतिक रूप से ही आप में आ गई है? Umberto Eco. When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, Umberto Eco कहते हैं, जब मैं इटली में अपना प्रथम शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा था, तब एक प्रोफेसर ने कहा, Scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. शोधकर्ता बहुत से निश्चित विषय को चुनते हैं और फिर वे बहुत सी असत्य परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, तब वे इन्हें ठीक करते हैं और अंत में उनके निष्कर्ष निकालते हैं. You, on the contrary, told a story of your research, even including your trials and errors. आपने इसके विपरीत अपने शोध की कहानी बताई, यहाँ तक कि आपके परीक्षण और त्रुटियां भी शामिल हैं. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जिसका अर्थ था कि उन्होंने इसकी सराहना की. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. उस समय 22 वर्ष की आयु में मैं समझ गया था कि विद्वानों की किताबें उसी तरह लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी, शोध की कहानी बताकर. This is why my essays always have a narrative aspect. और यही कारण है कि मेरे निबंध में हमेशा वर्णनात्मक पहलू होता है. And this is why probably I started writing narrative novels so late, at
the age of 50, more or less. और यही कारण है कि मैंने उपन्यास लिखना इतनी देर से शुरू किया, लगभग 50 वर्ष की अवस्था में। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. मुझे याद है कि मेरे प्रिय मित्र रोलैंड बार्थेस हमेशा निराश रहते थे कि वो एक निबंधकार थे, ना कि उपन्यासकार। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. वो किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। I never felt this kind of frustration. मैंने इस तरह की निराशा कभी भी महसूस नहीं की। I started writing novels by accident. मैंने संयोग से उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। I had nothing to do one day, and so I started. एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसलिए मैंने शुरुआत कर दी। Novels probably satisfied my taste for narration. शायद उपन्यासों ने वर्णन के लिए मेरे स्वाद को, मेरी पसंद को संतुष्ट कर दिया। मुकुंद, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. उपन्यासों की बात करें तो प्रसिद्ध शिक्षाविद होने से लेकर द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद आप शानदार रूप से प्रसिद्ध होते चले गए। You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. आपने गैर कथा के कई और विद्वानों के कार्यों के खिलाफ 5 उपन्यास लिखे हैं, उनमें से कम 20 से अधिक। Umberto Eco, over 40, 40 से ऊपर। मुकुंद, over 40, among them a seminal piece of work on semiotics. उनमें से रोग निदान पर कुछ आधारभूत कार्य भी हैं। But ask most people about Umberto Eco and they'll say, oh, he is the novelist. लेकिन लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछो तो वो कहेंगे, ओह, वह तो उपन्यासकार हैं। Does that bother you? क्या यह आपको चिंतित करता है? Umberto Eco, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. हाँ, क्योंकि मैं खुद को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। It's not a joke. यह कोई मजाक नहीं है। I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. मैं शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ, न कि पेन क्लबों और लेखकों की बैठकों में। I identify myself with the academic community. मैं अपने आप को शैक्षणिक समुदाय का एक हिस्सा मानता हूँ। But okay, if they most people have read only the novels, laughs and shrugs. लेकिन ठीक है, यदि उन्होंने अधिकांश व्यक्तियों ने केवल उपन्यास ही पढ़े हैं, हंसता है और कंधे हिलाता है। I know that by writing novels I reach a larger audience. मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखने से मैं ज्यादा पाठकों तक पहुंचा हूँ। I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. और रोग निदान की सामग्री के लिए 10 लाख पाठकों की आशा मैं नहीं कर सकता। मुकुंद, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet, it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? और ये मुझे मेरे अगले प्रश्न पर ले आई है। द नेम ऑफ द रोज एक बड़ा और गंभीर उपन्यास है। यह एक स्तर पर एक जासूसी मसाला है
लेकिन यह अध्यात्मवाद, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास की तरफ इशारा करता है। फिर भी इसके पाठक बहुत संख्या में हुए। क्या आपको इन सबसे आश्चर्य नहीं हुआ? Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. So, in a way, I reached only a small percentage of readers. मान लो इस ग्रह पर 600 करोड़ लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज की 1 से 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी। अतः इस प्रकार मैं पाठकों के एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच पाया। But it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences, or at least don't always want this. I myself, at 9 p.m. after dinner, watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. ये वास्तव में उस प्रकार के पाठक हैं जो सरल अनुभवों को नहीं चाहते हैं और कम से कम हमेशा तो ऐसा नहीं चाहते। मैं खुद रात के 9 बजे खाना खाने के बाद दूरदर्शन देखता हूँ या मियामी वॉइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। मैं इसका आनंद लेता हूँ और मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन सारा दिन नहीं। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that क्या इस उपन्यास की भारी सफलता में कहीं यह तथ्य तो नहीं कि यह मध्ययुगीन इतिहास को अम्बर्टो इको ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन मुझे आपको एक दूसरी कहानी सुनाने दें, क्योंकि मैं अक्सर एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियां सुनाता हूँ। मेरी अमेरिकी प्रकाशक ने कहा कि वह मेरी पुस्तक को पसंद करती है, लेकिन वह इसकी 3000 से ज्यादा प्रतियां बिकने की आशा नहीं करती थी। एक ऐसे देश में जिसमें किसी ने कभी गिरजाघर नहीं देखा हो और कभी लैटिन भाषा नहीं पढ़ी हो, इसलिए मुझे केवल 3000 प्रतियों का ही एडवांस दिया गया। लेकिन अंत में इसकी संयुक्त राज्य में 20 से 30 लाख प्रतियां बिक गईं। मुझसे पहले भी मध्ययुगीन काल पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मैं सोचता हूँ कि इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो शायद यह समान नहीं रहता, अर्थात इतनी सफल नहीं होती। पर उस समय पर ही सफल क्यों हुई, यह एक रहस्य है।